ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان بھر کے مسلمان شناختی دستاویزات بنائے تیار رکھے، وقف بورڈ میں غیر مسلم کی شمولیت قبول نہیں، اسد الدین اویسی۔ وقف بچاؤ جلسہ عام زبردست کامیاب۔ ضلع کلکٹر ٹی وی ریڈی کی آفس کمپلیکس میں عہدیداران کے ساتھ جائزہ اجلاس، ریشن شاپس اور می سیوا مراکز کا معائنہ کرنے عہدیداران کو دیا حکم۔ ایڑپلی منڈل میں ایک بار پھر چیتے کی گشت، بکریوں کے جھنڈ پر حملہ، عوام میں خوف و ہراس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان بھر کے مسلمان شناختی دستاویزات بنائے تیار رکھے، اسد الدین اویسی کا بیان۔ فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کریں، وقف بورڈ میں غیر مسلم کی شمولیت قبول نہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام بودھن میں منعقدہ وقف بچاؤ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ اپنے شناختی دستاویزات کو باقاعدہ بنائیں اور تیار رکھیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر فہرست میں نظر ثانی کے دوران کئی ناموں کو حذف کرنے کا خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں ووٹر فہرست میں نظر ثانی کے نام پر شناختی دستاویزات پیش نہ کرنے کے نام پر کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ برتھ سرٹیفکیٹ، ایسیسی میمو، کیسٹ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، پینشن سرٹیفکیٹ، ڈبل بیڈ روم سرٹیفکیٹ، سرکاری شناختی کارڈ تیار رکھیں۔ بوتھ لیول عہدیدار ان دستاویزات کے لیے رجوع ہونے کی صورت میں انہیں پیش کیا جائے تاکہ خفیہ طور پر NRC کے تحت کارروائی سے بچا جا سکے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک 60,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 2 لاکھ فلسطینی لاپتہ ہیں، 10,000 فلسطینی بچے شدید زخمی، 12 لاکھ فلسطینی بے گھر کر دیے گئے۔ انہوں نے وقف بورڈ میں غیر مسلم کی شمولیت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مرکزی حکومت سے سوال کیا کہ مرکزی حکومت ہندو وقف بورڈ میں مسلمان کو شامل کریں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں وقف بچاؤ مہم کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے ریاست مہاراشٹر میں قریش برادری کی جانب سے گوشت کی تجارت کو روک دیے جانے پر تائید کی۔ اس جلسے عام سے مفتی زبیر احمد، جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء، مولانا غیاث احمد رشادی، کنوینر ریاستی وقف بورڈ، رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی، حامد محمد خان، سابقہ امیر جماعت اسلامی مولانا شفیق جامع اہل حدیث، طاہر بن حمدان چیئرمین اردو اکیڈمی، وجہ اللہ خان امیر جمعیت اہل حدیث، مولانا کریم الدین کمال نے بھی خطاب کی۔ جلسے عام میں مولانا عبد الوہاب اہل حدیث، احمد عبد السمیع معتمد ضلع مجلس، میر الیاس علی صدر ٹاؤن مجلس بودھن، محمد فیاض الدین صدر ضلع مجلس نظام آباد، محمد شکیل احمد فاضل نظام آباد ٹاؤن صدر مجلس، میر مجاز علی سابق ڈپٹی میئر نظام آباد، حبیب خطیب سابق نائب صدر نشین بلدیہ بودھن، سید عابد صوفی ایڈوکیٹ، احمد بن محسن جنرل سیکرٹری معتمد ٹاؤن مجلس بودھن، حبیب خدیر خان خازن، عقیل فاروقی حاجی بلڈر شریک معتمدین،
वाजिद हुसैन एडवोकेट, मोहम्मद उमर, शेख अत्तर, शेख अयूब, मोहम्मद अल्ताफ, समीर हुसैन, सैयद सलमान अत्तर, अब्दुल रशीद अहमद, मुश्ताक अहमद, साबिक काउंसलर एजाज खान, सैयद खिजर, मोहम्मद नवीद रजा, वलीउद्दीन, अलीम रजा, आरिफुद्दीन, वसीम, सैयद ख्वाजा, मुश्ताक अहमद, सैयद उमर, शेर खान, मोहम्मद अयूब मौजूद थे। जलसे आम में हर तरफ सरों का समंदर नजर आ रहा था। जलसे आम जबरदस्त कामयाब साबित हुआ। सदर मजलिस बोधन टाउन मीर इलियास अली ने जलसे आम में शिरकत करने वाले तमाम उलमाए दीन, कायदीन और अवामुन नास का शुक्रिया अदा किया। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, कास्ट सर्टिफिकेट है यह नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है, दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं, ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। अरे जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री आवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि इसके बाद के बोलेंगे आप दिखाते क्या, मैं डिग्री दिखाने को तैयार हूं। कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं इलियास साहब तुम ये मलकी वक्त नहीं कर सकते, तो मुसलमान ही नहीं है, यानी 5 साल तक नहीं दे सकते। अच्छा 5 साल का सर्टिफिकेट कौन देंगे? अमित शाह देंगे। बताओ कौन देगा सर्टिफिकेट हमको 5 साल का? कलेक्टर साहब देंगे, एसपी साहब देंगे। अरे जो कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया। जब हिंदू धर्म को मानने वाला मान जाता है, हिंदू हो जाता है, तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले को ये टेस्ट क्यों? ये टेस्ट क्यों बताओ आप? आखिर क्या हो रहा है? नहीं 5 साल तक नहीं दे सकते। मेरी एक आरएसएस के वाबस्ता कई तंजीमें पार्लियामेंट को आए थे, मुझसे बोले कि आप खामखा मुखालिफत कर रहे। मैंने कहा ये बात बताइए, अगर कोई मुसलमान चाहे हिंदू धर्म को प्रॉपर्टी अपनी दे सकता? बोले हाँ दे सकता। मेरा फिर मैं अपने अल्लाह के नाम पे क्यों नहीं दे सकता हूं? बोले नहीं 5 साल का कानून। बोला चलो मान लिया तुमको हमारी बात को थोड़ी देर के लिए। 5 साल में मैं क्या किसी को दे सकता हूं? हिंदू धर्म की मंदिर को, ईसाइयों के गिरजाओं को, सिख धर्म के गुरुद्वारा को? हाँ बराबर दे सकते हो उनको आप। मिला आवाज दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? ये कौन सा आर्टिकल 14 है बताओ? तो बोले तुम्हारे से बहस करना बेकार है। अरे बहस नहीं कर रहा हूं, जब सबको दे सकते तो वहां भी लगा दो 5 साल का कानून। लगा सकते आप 5 साल का कानून। 5 साल की बात करें तो आप 5000 साल पहले चले जाते, आप 5000 साल पहले चले जाते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून में ये तमाम नुक्स हैं, और जो हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत ने रूल्स बनाए, ये बड़ा इनकंसिस्टेंट और गैर वाजिबी। जैसे ही कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों के लीडरों ने एक दूसरे को चैलेंज किया,
वेलपुर में खुसूसी पुलिस दस्ते तैनात किए गए। सीपी साई चैतन्य ने अमनो सलामती को बरकरार रखने के लिए दफा 163 BNSS को नाफिज किया और हिफाजती इंतजाम किए। रियासती कांग्रेस हुकूमत ने रोजगार के लिए खलीजी ममालिक में मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। ताहम जब साबिका वजीर बालकुंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ये सब एक धोखा है। DCC सदर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी और बालकुंडा हल्का इंचार्ज M सुनील रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर अवामी बहस को चैलेंज किया, जिसने अचानक सियासत को गर्मा दिया और BRS पार्टी कायदीन के बाहमी चैलेंजों से नाराजगी का इजहार किया। इसके साथ निजामाबाद CP साई चैतन्य के हुक्म पर वेलपुर मंडल में 163 BNSS का निफाज किया जा रहा। कांग्रेस और BRS पार्टियों के सियासी चैलेंजों के पेश नजर जुमेरात की सुबह वेलपुर में खुसूसी पुलिस दस्ते तैनात किए गए। किसी भी हंगामे को रोकने के लिए इंतनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए और हिफाजती इंतजाम किए गए। पुलिस कमिश्नर ने मानला मोहन रेड्डी और सुनील रेड्डी वो दिगर को MLA के घर जाने और उन्हें मंसूबे को ये कहते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया कि साबिका वजीर और MLA प्रशांत रेड्डी झूठ बोल रहे कि हुकूमत स्कीमों को नाफिज नहीं कर रही। इसी तरह BRS पार्टी के तारुफी प्रोग्राम को इन मुस्तहिकीन के साथ मनफी अंदाज में मुनाफत करने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह BRS पार्टी स्कीमों को हासिल न करने वाले इस्तिफादा कुनिंदान के साथ मनफी अंदाज में मुनाफिदा तारुफी प्रोग्राम की भी इजाजत नहीं दी गई। CP ने इंकशाफ किया कि दफा जुमेरात की सुबह 6 बजे से जुमे की सुबह 6 बजे तक नाफिज की जाएंगी। अमनो सलामती को बरकरार रखने के हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में ये दफा नाफिज है वहां 4 से ज्यादा लोग जमा ना हो। उन्होंने खबरदार किया कि अहकामात के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरियास्ता निजामाबाद शहर के कंटेश्वर में मानला मोहन रेड्डी के घर पर सुबह सवेरे पुलिस तैनात कर दी गई। थर्ड टाउन SHO ने ऐलान किया कि उन्हें घर में नजर बंद कर दिया गया क्योंकि वो वेलपुर में एक कानूनी प्रोग्राम के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई और नारेबाजी की क्योंकि पुलिस ने M सुनील रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया, जो मोरताड़ मंडल मुस्तफर के प्रजानीलम में वेलपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक मौके पर सुनील रेड्डी ने इज्तिमाई तौर पर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आने वाली नस्लों के लिए आलूदगी से पाक मुआशरे की तामीर हम सब की जिम्मेदारी। हर कोई पौधा लगाए। वनमा उत्सव प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने की शिरकत और खिताब किया। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद शहर के सारंगपुर अर्बन पार्क में महकमा जंगलात के अफसरान के जरिए मुनाफिदा 76वीं वनमा उत्सव प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और पौधा लगाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियात का मतलब है जमीन, पानी, हवा, दरख्तों और जानवरों की अनवा की शक्ल में हमारे अर्द गिर्द की फितरत। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज पूरा माहौल आलूदा हो रहा है। हिंदू सकाफत के मुताबिक हिंदुस्तान में एक ऐसी सकाफत है जहाँ शमसी तवन्नाई को सूरज देवता और पानी को गंगा देवी समझा जाता है और दरख्तों की भी पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि लोग अपने घर के पीछे केला, तुलसी, बरगद, आम और नीम जैसे दवाओं के दरख्त रखते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन आज उनकी पूजा के लिए मंदिर जाना पड़ता है। आलूदगी की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए RSS जैसी तंजीमों का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी और पैदावारी सलाहियत में कमी नस्ल इंसान की बका के लिए खतरा है और इसका असर माहौलियात पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि 15 से 22 अगस्त 2018 तक कौमी राजधानी दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा साया देने वाले और दवाओं के दरख्त लगाए गए और कहा कि शहरों में आलूदगी दिन ब दिन बढ़ रही और अपने बच्चों की आने वाली नस्लों के लिए आलूदगी से पाक मुआशरा बनाने के लिए दरख्त लगाना और उनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम में DFO सुधाकर, फॉरेस्ट रेंज के अफसरान संजय, रवि मोहन और दीगर भी मौजूद थे।
ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటే ఆ కుటుంబము ఆర్థికంగా కూడా పటిష్టమవుతుంది. ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆ కుటుంబంలో, ఎందుకంటే ఈరోజు మేము చూస్తూ ఉంటాం పేదలు మధ్యతరగతి వాళ్ళు బీమారయ్యి పాపము హాస్పిటళ్లలో లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు. ఏదైనా అమ్ముకుంటారు, ఉన్నది లేని అమ్ముకొని ప్రాపర్టీస్ అమ్ముకుంటారు, ప్లాట్లు అమ్ముకుంటారు. ఆ తర్వాత ఒక 3 లక్షలు 4 లక్షలు ఖర్చు అయితే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అని ప్రభుత్వానికి అప్లై చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఎంత వస్తుంది? 50-60 వేలు, ₹1,00,000 లోపు వస్తాయి. అందుకే నేను చెప్తా ఉన్నా మీ అందరికీ, ఇది మనకు వృక్షాలు ప్లాంటేషన్ కోసం మనకు అన్ని కూడా ఫ్రీగా వస్తాయి. అందరు కూడా భవిష్యత్తులో మీ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో, గత సంవత్సరం మీరు 41 లక్షల మొక్కలు నాటే టార్గెట్ 43 లక్షలు చేసినందుకు డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా నేను మొట్టమొదటిగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా. ఈ సంవత్సరం కూడా మీ టార్గెట్ పూర్తి కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా దాని పరిరక్షణ విషయంలో ఇంకా वक्फ बचाओ जलसे आम जबरदस्त कामयाब। सदर मजलिस बोधन टाउन मीर इलियास अली का अवामुन्नास से इजहार तशक्कुर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम बरुस चारशंबा बामुकाम अम्बेडकर चौराहा बोधन पर मुनक़िदा वक्फ बचाओ जलसे आम में अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे आम जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस जलसे आम में सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाशुमूल उलमाए दीन ने शिरकत करते हुए खिताबात की। सदर मजलिस बोधन टाउन मीर इलियास अली ने जलसेआम में शिरकत करने पर सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तमाम उलमाए दीन, मजलिस कायदीन और अवामुन्नास का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जलसेआम को कामयाब बनाने में ताउन करने वाले तमाम कायदीन व कारकुनान और अवामुन्नास से इजहार तशक्कुर किया। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ मसाइल पर तहसीलदारों और मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मीटिंग मुनाकिद की और राशन कार्ड और मी सेवा मराकज़ का मुआयना करने अफसरान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तहसीलदारों और मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ मसाइल का जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने जायजा लिया। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो जिले में तमाम राशन शॉप्स और मी सेवा मराकज़ का बाकायदा मुआयना करें। अवामी तकसीम के निज़ाम में किसी भी खामी से बचने के लिए उन्होंने फील्ड लेवल पर दुकानों का दौरा करने और उनके काम काज का मुआयना करने का मशवरा दिया। उन्होंने तमाम राशन की दुकानों की निगरानी करने का हुक्म दिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि क़वाइद पर सख्ती से अमल दरामद हो और उनका सही तरीके से इंतजाम किया जाए। इसी तरह उन्होंने मशवरा दिया कि मी सेवा मराकज़ पर दरख्वास्त दहिंदान से सिर्फ एक मुकर्ररा फीस वसूल की जाए और उन्होंने इन मराकज़ की निशानदही करने का मशवरा दिया जो ज्यादा रकम वसूल करते हैं उनकी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त दहिंदान की जानिब से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि वो ज्यादा रकम का मुतालिबा करें। इस दौरान कलेक्टर ने तहसीलदारों को भूबाट की रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को जल्द से हल करने का हुक्म दिया। तजवीज़ की कि दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर शिफाफ तरीके से और क़वाइद के मुताबिक हल किया जाए, फील्ड इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये काम मनसूबाबंदी के मुताबिक किया जाए ताकि 14 अगस्त तक तमाम दरख्वास्तों को किसी भी सूरत में हल किया जा सके। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9535321111। एमएलए प्रशांत रेड्डी की जानिब से सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की तेलंगाना सीट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने की शदीद मजम्मत और एमएलए पर इलाके में बदअमनी फैलाने और मुनाफा हासिल करने के लालच के साथ तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की तेलंगाना सीट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने सख्त मजम्मत की जो इंदिरा प्रजा हुकूमत के तहत अवाम को फलाई स्कीमात फ्राहम कर रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला
खलीजी मुतासिरीन की मदद के लिए सख्त मेहनत करें। जिला कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई कॉल के मुताबिक टीपीसीसी एनआरए इंटरनेशनल कन्वीनर एन देवेंद्र रेड्डी खलीजी मुतासिरीन की मदद के लिए वज़ीर आला की जानिब से की गई इक़दामात की वज़ाहत करने के इस तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि प्रशांत रेड्डी के पैरोकारों ने उन पर गुंडों की तरह हमला किया और इंतहाई नफरत अंगेज सलूक किया। उन्होंने कहा कि वो वेलपुर में पेश आने वाले वाक़ये की शदीद मज़म्मत करते हैं और कहा कि अगर उन्होंने ये बताने का प्रोग्राम किया होता कि हुकूमत ने किस तरह खलीजी मुतासिरीन की मदद की तो वो राउडियों को घर पर रखते। ऐसे इक़दाम जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा धचका है। उन्होंने मशवरा दिया कि वो आने वाली नस्लों को गलत रास्ते पर चलाएंगे। మేము రాలేకపోయినప్పటికీ ఇవాళ మీరు ముందస్తుగానే దాడి చేయాలనేటువంటి ఒక ముందస్తు వ్యూహంతో మీరు ఇంటి దగ్గర అందరిని పెట్టుకొని ఒక రౌడీలాగా రౌడీజాన్ని ప్రోత్సహించి వల్ల దాడులు చేపిస్తూ ప్రజలలో మన్నన పొందాలనేటువంటి మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది దీని వల్ల సాధ్యం కాదు। ఎక్కడైతే యువత చెడుదోవ పడుతున్నారో వాళ్ళని మంచి చేయాల్సింది పోయి ఇవాళ మీరే ఒక యువతను చెడుదోవ ప్రయాణింపజేస్తూ వారికి రౌడీలాగా తయారు చేసి వల్ల ఉసిగొలుపుతున్నారు। ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, ఈ పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పేసి మేము మీకు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీపై ఏదైతే విమర్శ చేస్తున్నావో నేను మచ్చకకు మీ మీద ఒక 2-3 అంశాలను గుర్తు చేస్తా। ఇవాళ నీ అనాలోచిత నిర్ణయాలతో అనాలోచితటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని నీ సొంత మండలంలో నిర్మించినటువంటి చెక్ డ్యాంల వల్ల రైతులు 100 ఎకరాలు నష్టపోతే ఒక్క రైతుకని ఒక పైసా నష్టపరిహారం ఇచ్చినా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయు। ఆ రోజు రైతులంతా రోడ్డు మీద పడి గోసపడితే ఏ ఒక్క రైతును కూడా పరామర్శించి రైతును ఆదుకున్నటువంటి ప్రక్రియ ఎక్కడ కూడా మీరు 10 సంవత్సరాలు చేయలేదు। కేవలం రైతు బంధు పేరు మీద రైతులకు రావాల్సినటువంటి అన్ని సంక్షేమ పథకాలను సబ్సిడీలను అన్నింటి కూడా ఎత్తేసి రైతులు నట్టేట ముంచింది మీరు కాదని నేను అడుగుతా ఉన్నాను। ఆ రోజు రైతులు మాకు పసుపోడు కావాలని ఎర్రజొన్న ధర కావాలని చెప్పేసి గిట్టుబాటు ధరల కోసం రోడ్డు మీదకి వస్తే కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టించి రైతులు రోడ్డు మీదకి రాకుండా నానా ఇబ్బందులు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి చేసింది మీరు కాదని అడుగుతా ఉన్నాం। ఇవాళ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో అనేక రకమైన సంక్షేమాలు తీసుకొస్తూ ఒక్కటొక్కటిగా రైతులకు అన్ని కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఎన్నికల ముందు హామీలు ఇచ్చినా అవన్నీ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే ఇవాళ ఇది ఎక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా అవుతుందని చెప్పేసి నువ్వు దీన్ని తప్పించుకోవడం కోసము ఇవాళ మీరు ఈ రౌడీజాన్ని एमएलए प्रशांत रेड्डी में अगर हिम्मत है तो बहस के लिए आए या हुकूमत के बारे में प्रोपेगेंडा करना बंद करे। डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी का खुला चैलेंज। बीआरएस कायदीन रियासती हुकूमत की तौहीन करते हुए अवाम को गुमराह करने पर बरहमी का किया इजहार। पुलिस ने जिला कांग्रेस कमेटी के सदर और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने वेलपुर में हड़ताल की कॉल दी थी। मानला ने अपनी रिहाइशगाह पर मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हरीश राव और केटीआर इख्तिदार से महरूम होने के बाद से झूठ बोलकर रियासती हुकूमत की तौहीन करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल इख्तिदार में रहने के बाद वो अपनी अकल खो चुके हैं और पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। जिस तरह रियासत में हरीश राव और केटीआर झूठ बोल रहे उसी तरह प्रशांत रेड्डी भी झूठ बोल रहे और जिले में रियासती हुकूमत की तौहीन कर रहे और अवाम से झूठ बोल रहे। उन्होंने वजाहत की कि हमने वेलपुर गांव में एक कानू बेकू प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि प्रशांत रेड्डी को अवाम के हक़ाइक़ से आगाह किया जा सके। माजी में प्रेस के जरिए प्रशांत रेड्डी से बारहा कहा गया कि वो टीआरएस की जानिब से पिछले 10 सालों में फराहम की गई तरक्याती और फलाई स्कीमों पर बातचीत के लिए आए और कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद फराहम करता फलाई स्कीमों में बदनवानी पर बात करें, लेकिन प्रशांत रेड्डी नहीं आए। मानला मोहन रेड्डी ने सवाल किया कि अगर प्रशांत रेड्डी अपने कहे पर पाबंद है, अगर वो वाकई ये मानते कि बीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए कई फलाई स्कीमें काम कि बीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए अच्छा काम किया तो वो बहस में क्यों नहीं आ रहे। मानला मोहन रेड्डी ने सवाल किया। वेलपुर गांव में प्रशांत रेड्डी के लिए आग खोलने का प्रोग्राम मुनाकिद करने की बुनियादी वजह यह है कि प्रशांत रेड्डी हाल ही में वेलपुर मंडल में खलीजी मुतासरा खानदान से मिलने गए और ये कहते हुए झूठे बयान दिए कि रियासती हुकूमत ने ये नहीं कहा कि वो खलीजी मुतासरीन के साथ खड़ी, लेकिन मानला ने वजाहत की कि रियासती हुकूमत ने खलीज के मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए एक एनआरआई सेल कायम किया है जो मुख्तलिफ ममालिक में मर रहे हैं और इसके हिस्से के तौर पर कांग्रेस हुकूमत ने पहले ही जिले में 55 लोगों के साथ प्रशांत रेड्डी के अपने हल्के में 18 लोगों को इमदाद फराहम की
उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम प्रशांत रेड्डी को सबूत के साथ ये सब दिखाने और उनकी आंखें खोलने के लिए शुरू किया गया था। అంతే విధంగా మీరు 10 సంవత్సరాలు ప్రతిసారి 2-3 నెలలకు ఒక్కసారి పెంచిన బస్ కిరాయిలన్నీ ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఏంది? అదే విధంగా రైతులకు మీరు ఇచ్చిన రైతు భరోసా ఎంత, మేము ఇస్తున్న రైతు భరోసా ఎంత? మీరు 10,000 ఇస్తే మేము 12,000 ఇస్తున్నాం. అంతేకాదు ఈ దేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో చేయనటువంటి రైతుల కోసం చేస్తున్నటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమం ఏదైనా ఉన్నదంటే రైతు పండించిన సన్నాలకు బోనస్ ఇస్తున్నాం. అది మీకు కనబడడం లేదు. అన్నిటికంటే రైతు ఈరోజు ఈ దేశంలోనే అత్యంత దిగుబడి వచ్చినటువంటి ప్యాడీని సక్సెస్ఫుల్గా కొనుగోలు చేసి సన్నాలకు ఒక లాస్ట్ ఖరీఫ్లో మనము బోనస్ ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు రబీలో రేపో ఎల్లుండి నుంచి రబీలో కూడా బోనస్ ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తుంది. ఎప్పుడైనా చెప్పుర్రి 6 నెలలు టైం తీసుకొని మీరు రైతు బంధు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. కానీ 9 రోజుల్లోనే 9,000 కోట్ల రూపాయలను 9 రోజుల్లో చెల్లించినటువంటి చరిత్ర రేవంత్ రెడ్డిది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని. ఇక ఇవన్నేమో మీరు అంటున్న మీ లుచ్చగాళ్ళు మీ చెంచాలు మాట్లాడుతున్న విషయాలు ఏంటంటే ఆడ కేసీఆర్ లుచ్చతనం చేస్తున్నారు, దాన్ని చూసి మీరు ఇక్కడ లుచ్చతనం చేస్తున్నారు. నేను అనేది ఒక్కటే, మీరు నిజంగా చర్చించేది ఉంటే దేనికైనా రెడీ రండి. కానీ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే మిమ్మల్ని గ్రామాల్లో తిరగనీయకపోవడంతో పాటు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకొని మీ తాట వలుస్తామని సందర్భంగా सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करें। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सुप्रिंटेंडेंट को दिया मशवरा और हिदायत की कि डॉक्टर बर वक्त दस्तयाब हो। बांसवाड़ा कस्बे के माता शिशु अस्पताल में तरक्याती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मुकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सब कलेक्टर किरण माई और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कासुला बालराजू ने अस्पताल में आने वाले मरीजों से बात की और उनके मसाइल दरियाफ्त की। बादशाह एमएलए पोचाराम ने तरक्याती कमेटी के इजलास में ओहदेदारों के हमरा अस्पताल में मौजूद मसाइल पर तबादले ख्याल किया। मुकामी कायदीन ने कई मसाइल एमएलए के इल्म लाए। खास तौर पर उनसे कहा कि वो अस्पताल में सुप्रिंटेंडेंट की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें और कहा कि एम्बुलेंस की तादाद में इजाफा हुआ है। कामारेड्डी को खून की जांच किए बगैर अस्पताल भेजा जा रहा और ये मसला गुज़िश्ता 6-7 महीने से चल रहा है। एमएलए ने अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट को इन मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत दी। उन्होंने मरीजों को खाना फराहम करने वाली एजेंसी के मैनेजर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम की जाए। उन्होंने सफाई का मुनासिब इंतजाम न करने पर सुपरवाइजर पर भी बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि मुकामी रहनुमाओं की जानिब से तजवीज़ करदा मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और अस्पताल के डॉक्टरों को मरीजों के लिए दस्तयाब होने के लिए वक्त मख्तस किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस अस्पताल में आते हैं वो गरीब है और वो समझते हैं कि अस्पताल उनके लिए मंदिर है और डॉक्टर भगवान के बराबर है। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने का इजहार किया। एमएलए ने पुलिस को हिदायत दी कि वो प्राइवेट एम्बुलेंसों के खिलाफ कार्रवाई करे जो परेशानी का बाज बन रही है। 250-230 పడకల ఆసుపత్రి అన్ని కలుపుకుంటే స్పెషల్గా ఉన్నాయి కొన్ని బెడ్స్, డయాలసిస్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక దేవాలయం అండి. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్లకు లేకుంటే డయాలసిస్ చేయాలనుకుంటే నిజామాబాద్కు హైదరాబాద్కు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని వెళ్ళేవారు. ఇలా మొక్కుతున్నారు, సార్ చాలా మాకు మంచిగా అయింది సార్, వారానికి 3 సార్లు మా ప్రాణం కాపాడుతున్నారు సార్, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. కాబట్టి చిన్న చిన్న సమస్యలు అక్కడక్కడ వస్తాయి, ఆ సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చేసుకుంటాం. ఈ ఆసుపత్రి నా దృష్టిలో ఈ ప్రాంత ప్రజలకు పేదవారికి ప్రత్యేకంగా ఉన్న డబ్బున వాడు ఎందుకు వస్తాడు, వాడు కారెత్త హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాడు. పేద ప్రజానీకానికి దేవాలయం ఇది. ఈ దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు దేవుళ్ళు నా దృష్టిలో కూడా. ఎప్పుడు కూడా నేను డాక్టర్లు గౌరవిస్తాను, ఎందుకంటే వారి ప్రాణాలను కాపాడేవారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో. మేము ఎమ్మెల్యేలు కాదు, మంత్రులం కాదు, ముఖ్యమంత్రి కాదు, ఇంకెవరు కాదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రాణం పోకుండా కాపాడేదే డాక్టర్స్. వారంటే నాకు గౌరవం చాలా. चीते को एक बार फिर एड़पली मंडल में घूमते हुए देखा गया, जिससे गांव वालों में खौफ व हिरास। चीते ने बकरियों के झुंड पर किया हमला और एक बकरी को ले गया। महकमा जंगलात के अहलकारों ने तेंदुए के निशानात की तस्दीक की।
एड़पली मंडल के जंगपेट के मसाफात में एक वाकया पेश आया। तेंदुए ने बकरियों के झुंड पर हमला किया और बकरी को ले गया। ये वाकया सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। महकमा जंगलात के एहलकारों ने मामले की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और तेंदुए के निशानात की तस्दीक की। हालांकि इस तरह के वाकयात माजी में भी हो चुके, लेकिन महकमा जंगलात के एहलकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से अवाम में खौफ व हिरास। मुकामी अवाम ने हुक्काम से मुतालबा किया कि तेंदुए को पकड़ा जाए और अवाम में फैले खौफ को दूर किया जाए। अख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान भर के मुसलमान शनाख्ती दस्तावेजात बनाए तैयार रखे, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की शमूलियत कबूल नहीं, असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ बचाओ जल्द से आम, जबरदस्त कामयाब। जिला कलेक्टर टी विनय रेड्डी की ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ओहदेदारान के साथ जायजा इजलास, रेशन शॉप्स और मी सेवा मराकिज का मुआयना करने ओहदेदारान को दिया हुक्म। एड़पली मंडल में एक बार फिर चीते की गश्त, बकरियों के झुंड पर हमला, अवाम में खौफ हरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।